مجھے بہت افسوس ہے، مجھے اسلام دے، مجھے اس کو مدد کرے نا. پھر میں غریب آدمی ہوں، مجھے بہت زیادہ ہے کہ اس کو میرے ساتھ. بس مجھے انصاف چاہیے، آپ سب کا بولتی ہوں مجھے انصاف دے. اس نے بولا کہ عائشہ کے ساتھ کسی ظالم نے ایسے زیادہ کیا. میں نے سوچا کہ خیر ادھر جنگل ہے، تھوڑا سا یہ جگہ خراب جگہ ہے. میں نے ایسے سوچ کیا کہ اس نے سانپ وغیرہ کسی چیز نے کاٹا. بہت انصاف کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں. السلام علیکم، ABN سے میں ہوں زاہدہ آرا. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. آج میں اسلام آباد کے علاقے علی پور میں موجود ہوں، جائے وقوع پر، جہاں 30 مئی کو عائشہ 8 سالہ بچی ہے، اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ گھر سے 12:30 بجے نکلی تھی کھیلنے کے لیے دن کے وقت، اور یہاں پر کوئی درندہ نما جانور اسے ملتا ہے اور اس بچی کو اس جگہ پر لے کے آتا ہے کہ بلڈنگ ابھی بن رہی ہے، یہاں پر کوئی رہائش نہیں ہے، اس طرح سے ویرانی سی جگہ ہے. اس کو یہاں پر لایا جاتا ہے. لانے کے بعد اس کا منہ بند کرتے ہوئے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اس کو گھسیٹتے ہوئے یہاں لے کے جایا جاتا ہے. اس کے بعد جو وہ درندگی کر سکتا تھا اس کے بعد اس نے کی. اس کے بعد جو بچی کی حالت ہوئی وہ پھر محلے والوں نے بھی دیکھی، گھر والوں نے بھی دیکھی کہ وہ خون سے لت پت تھی. گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچی چھت سے گری ہے، بچی کو چوٹ آئی ہے، بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بچی کو کیا ہوا ہے، اور بچی خود بھی وہ بتانے سے قاصر تھی. تو باقی کیا کہانی ہے کہ ابھی تک رپورٹ میں یہی بات سامنے کہ FIR میں اس طرح ایسا کر کے واقعہ پیش آیا. ان کی فیملی سے جانتے ہیں کہ کہانی اصل کیا تھی، کیونکہ جتنی مجھے معلوم تھی میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ کوئی پہلی کہانی نہیں ہے کہ اب تو شاید ہمارے دل بھی پتھر کے ہو چکے ہیں ایسی کہانیاں سن سکے. اب عائشہ کے والدین کی گفتگو سنتے ہیں. جی، عائشہ کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب عائشہ گھر آئی تو انہوں نے ان سے کیا کہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب عائشہ گھر آئی تو عائشہ نے آپ کو کیا کہا تھا؟ مجھے کہ میں ماما مستی کرتی ہوں، میں کہتی ہوں میری گڑیا کے ساتھ تھی، میں کہتی ہوں ماما چل مستی کر، دور جانا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے دور نہیں جاؤں گا. میں 2 چمچ اس کو چاول دیے. اب غریب تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ادھر چلتی ہے اس کو آدمی کی بغیرت آدمی کا اس کو بات کرتی ہے. مجھے بہت افسوس ہے، مجھے اسلام دے، مجھے اس کو مدد کرے نا. پھر میں غریب آدمی ہوں، مجھے بہت زیادہ ہے کہ اس کو میرے ساتھ بہت زیادہ ہے. غریب تھی، وہ بغیرت نہیں تھی. بہت میں پٹھانی انسان ہوں، پشتو زبان جمع کے بغیرت کا بیٹی نہیں ہوں. بس مجھے انصاف چاہیے، آپ سب کا بولتی ہوں مجھے انصاف دے. تو ابھی تک عائشہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں کہ ادھر کمر میں درد ہے، پین میں درد ہے. مجھے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ اس کو علاج کرتی ہوں. میری میاں بہت مریض ہے، تکلیف ہے، اس کے درد ہے، اس پھر کیا کروں میں. ہم خود بھی چھوٹا چھوٹا سب کا بیمار ہے. مجھے اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ اس کو علاج کروں، دوائی کرتوں. پھر کیا کوئی غریب آدمی ہے. مجھے زیادہ انصاف ملا ہے. مجھے سارا لوگ سے بتاؤں گا مجھے انصاف بھی دے. جی بالکل، ان کی گفتگو آپ نے سنی. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید اس کی کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو کہ وہ پٹھانی ہیں اور ان سے اردو اتنی صاف نہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب بیٹی گھر آئی اور بیٹی کو میں نے کہا کھانا کھاؤ، بیٹی نے کھانا نہیں کھایا اور بہن بھائی کے ساتھ کھیلی نہیں. اور اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس کا ساتھ کچھ ہوا ہے، اور پھر میں نے اس بچی سے پوچھا. اور بار بار میری یہی اپیل ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. ہم غریب لوگ ہیں، اور میرا میاں جو ہے، جو عائشہ کے والد ہیں، وہ خود بھی ایک مریض ہیں اور کماتے بھی ہیں، مزدوری کرتے ہیں. تو ان کے اور 8 بچے بھی ہیں، ہم اس کا علاج بھی نہیں کرا سکتے. عائشہ کی طبیعت بھی ابھی اتنی ٹھیک نہیں ہے. کبھی وہ کہتی ہے کہ میرے کمر میں درد ہے اور کبھی وہ کہتی ہے میرے پیٹ میں درد ہے. تو بچی کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ جب آپ بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو کہاں تھی بچی، کیا کرنے گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خود بیکا چلاتا ہوں. میں اس ٹائم پر چک شہزاد میں تھا. میرے گھر والے، یہ پڑوس والے نے فون کیا کہ تم گھر میں آ جاؤ گے کہ تمہارا گھر میں پرابلم ہے، ایسے مسئلہ ہے. پھر میں نے فون کیا، اس نے فون کٹ کیا. میں نے خود فون کیا اس پڑوسوں والا کو. میں نے بتایا کہ ہمارا گھر والوں کے فون دو، کیا مسئلہ ہے. اس نے بولا کہ تم گھر پر آ جاؤ گے، یہ ہمارا بچی پر ایسے تکلیف ہے. ایسے پہلا نہیں بتایا کہ اس کس نے. میں نے سوچا کہ خیر ادھر جنگل ہے، تھوڑا سا یہ جگہ خراب جگہ ہے. میں نے ایسے سوچ کیا کہ اس نے سانپ وغیرہ کسی چیز نے کاٹا. پھر اس نے رونا شروع کیا، فون بند کیا. پھر تیسرا دفعہ پھر اس کو میں غصہ ہو گیا کہ کیا وجہ کیا ہے بتاؤ نا. اس نے بولا کہ عائشہ کے ساتھ کسی ظالم نے ایسے زیادہ کیا. نو پھر میں ادھر سے راستہ بھی قسم سے مجھے راستہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں کس طرح ادھر آ چکا ہوں.
बस जा चुका हूँ। बस ये हमारा भाई है, ये रिक्शा तो उसके बाद आपने FIR दर्ज कराई, इसका मेडिकल कराया? 10-15 मिनट पास गया पुलिस, इधर से लोगों ने फ़ोन किया पुलिस चिकशेदार थाने में, उधर से पुलिस आ चुका है। बस ये इस इलाके का चिकन बीम किया और बाद उसके बाद FIR बीम कट किया, फिर इस बच्ची को हमारा कम्प्लेक्स अस्पताल उधर ले लिया। तो अभी आपको कोई लग रहा है कि पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है, कोई इंसाफ आप? वो इंशाल्लाह कोशिश करेगा, पुलिस वाला भी कोशिश करेगा। मुझे खुद आपको किसी पे कोई शक है? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं, क्योंकि मैं अब बंदा के जानता भी नहीं। मैं तो सुबह जाता हूँ, रात में आता हूँ। शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारिजा है, सब देख रहे हैं कि अपील करना चाहते हैं, कर दें। बस मुझसे इंसाफ करे। मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से, ऐसे मत बोले कि मैं मुसलमान हूँ। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं क्या करूँगा कि बच्चे का केस भी लड़ूँगा, क्या अपने बच्चों के लिए रोज़ी पे पैदा करूँ। मैं तो ऐसे फंस गया हूँ कि मैं खुद हेपेटाइटिस बीमार भी हूँ। हमारा चेकअप भी करो, मेरा खुद बीमारी है। ये हमारा भैया शुगर का बीमार है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है। हम 4 भाई है, एक 4 सदी में रहता है, वो सब गरीब बंदे हैं। इधर अफ़गानिस्तान से अब हम चाह गए, उधर काम वगैरह कुछ भी नहीं था, हम मजबूरी से इधर आ चुके हैं। बस हमको इंसाफ चाहिए। बहुत इंसाफ कर रहे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। किससे इंसाफ मांग रही हैं? शहबाज शरीफ जी को, सबके बड़ा बड़ा आदमी से इंसाफ चाहिए। मुझे बहुत इंसाफ चाहिए। मेरे 5 बेटी है, 3 बेटा। तो खाती पीती है अभी आयशा? वैसे थोड़ा खाती है, थोड़ा नहीं। वो बहुत खफा है, बहुत। वो मुझे कहती है मुझे इंसाफ चाहिए, वो बेटी में कहती है। हम सबका बोले कि इंसाफ चाहिए। कहाँ गई थी आप? उधर खेलने गई थी? तो वहाँ पे कौन आया था? मेरा मुंह बंद करती एक। आंखें बंद कर दी थी आपकी? हाँ, और मुंह पे क्या लगाया था? हाथ। आपको चीख नहीं मारने दे रहा था? आपने चीखें मारी हैं? फिर वहाँ पर कौन आया था? ये बंद करता। तो उसकी शक्ल याद है वैसे आपको? नहीं। वो जब आपको लेके गया तो खींच के लेके गया था आपको? हाँ, तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। कमर में दर्द हो रहा है अभी आपके? इधर दर्द हो रहा। तो क्या कहना चाहेंगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपको देख रहे हैं तो क्या कहेंगी? सब लगा। इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, बच्ची की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि बच्ची को शायद अभी इंसाफ वर्ड भी कहना नहीं आता, लेकिन उसकी जो आंखों में दर्द है और वो जो बताना चाह रही है, शायद उसको वो लफ्ज़ भी नहीं मिल रहे कि मैं क्या बताऊँ। ना उस बंदे की उसको शक्ल याद है कि उसने चीखना चाहा होगा, उसने बोलना चाहा होगा, किसी अपने प्यारे को आवाज़ देना चाहिए होगी, लेकिन उस दरिंदे ने इसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था, आंखों पर हाथ रखा हुआ था कि ये ना बोल पाए और ना ही किसी को बुला पाए। जब इसके साथ वो सब कुछ कर चुका, उसको फेंक के जा चुका, मोहल्ले वालों ने बच्ची को उठाया, घर लेकर आए, और घर पर भी आकर बच्ची नहीं बता पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो वालिदा ने उससे पूछा और ये सारा मामला फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल के बाद फिर FIR दर्ज हुई। अब FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल ये कि FIR तो बहुत चीज़ों की दर्ज हो जाती है, लेकिन उस पर काम नहीं होता। तो अब बच्ची के जो पड़ोसी हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि जो पड़ोस में लोग थे उन्होंने क्या वाक़या देखा, या उनको किसी पर शक है। कि वालिदैन का तो कहना है हमें किसी पर शक नहीं है। बच्ची के जो चचा हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची के क्या लगता है? जी, मैं चाचा हूँ इसका। तो क्या कहेंगे कि जब से इसके साथ ये वाक़या हुआ है, बच्चे आपके डरने लगे हैं बाकी भी, या अब आप भी बच्चों को बाहर भेजते हुए डर रहे हैं? जी, हम खुद ही डर रहे हैं, बच्चों को नहीं छोड़ते कि बाहर से निकलें, और ये सारे महल्ले पर एक बुरा असर पड़ रहा है, और हम चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो जाए। ये बेचारा जो खुद ही बाइक चलाता है, इतना कमाई नहीं है इसका, तकरीबन 500-600 रुपये से का घर भी नहीं चलता, और हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि इसको इंसाफ दिलाए। जी। तो आपने जो FIR दर्ज कराई है, जैसे वो आयशा के वालिद भी कह रहे हैं कि FIR तो दर्ज हो गया, आपको लग रहा है कि FIR दर्ज हो गई, या आपको किसी पे शक भी नहीं और पुलिस उस मुजरिम को कहीं पकड़ लेगी? बस पुलिस कोशिश कर रही है कि उसको पकड़ ले, अभी तक कोई उसको मतलब कोई आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने दोबारा आपसे खुद रब्ता किया है? जी, पहले दिन वो तकरीबन 60-50 पुलिस आए थे, दूसरे दिन भी आए थे, तीसरे दिन, अभी तक आते जाते हैं, लोगों को पकड़ते, इंक्वायरी चल रही है, तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिला अभी तक इसके बारे में। जी, बच्ची के पड़ोसी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जब बच्ची को देखा तो किस हालत में थी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जब आयशा को आपने देखा, कहाँ से उठाया और कैसे पता चला आप पड़ोसी हैं इनके? मैं रात की ड्यूटी करता हूँ, मैं सोया हुआ था तो 12:30 का टाइम था। तो मेरी छोटी बहन आई है मेरे पास, मेरे कमरे में, तो जगाने के लिए आई है। कहती है बबलू भाई ये बात हो गई है। तो मैं उठाऊँ तो उसके बाद देखा तो पहले तो 5 के 10 मिनट लगे हैं कि ये देखने में कि बच्ची छत से गिरी है कि नहीं, ठीक है, खून से लथपथ थी। तो मैं उठाऊँ, मैं फिर यहाँ से भागना मैंने किया है। उसके पीछे वो कह रहे थे कि वो छोटा उनका ये साथ वाले पड़ोसियों का बेटा है छोटा, उसने देखा है। वो जब उसने ये काम कर दिया उसके बाद वो गला दबा रहा था उसका, तो उसने देखा तो वो डर के भाग गया उस घर जहाँ जिस घर आपको अंदाज़ा है कि वो बंदा इस मोहल्ले का ही है? नहीं, मतलब तकरीबन 5 साल हो गया मुझे इस महल्ले में, सबको जानता हूँ, कौन चरसी है कौन पोड़ रही है सबको। अच्छा, कोई सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है आपके इलाके में? नहीं, वही कल हम मशवरा कर रहे थे सारे दोस्त ग्राउंड में बैठ के कि आज जाएंगे। अभी शाम को मैं उठता हूँ तकरीबन 3-4 बजे उठता हूँ, तो आज जाएंगे, आके देखेंगे किसी न किसी घर में तो कैमरा लगा होगा। अच्छा, एज अ पड़ोसी आप, पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते इतना कुछ, तो कितनी हेल्प कर रहे हैं यहाँ के आसपास के लोग के? कल को किसी और की बच्ची के साथ भी हो सकता है। ये बात है, लेकिन ये आसपास के लोग भी क्या, ये सब तमाशा ही हैं, ठीक है। तो ये तनवीर अंकल हैं, हमारे साथ पड़ोसी हैं, इन्होंने बस मांग के कोई तकरीबन 6,000 रुपया करके दिए इनको, ठीक है। तो बाकी हमसे जितनी हो रही है हम कर रहे हैं। जी, आयशा की फ़ैमिली की आपने गुफ्तगू सुनी। ये सिर्फ एक आयशा की फ़ैमिली की कहानी नहीं, ना जाने कितनी मासूम कलियां हमारी रोज़ाना इसी तरह रोन दी जाती हैं। किसी को कत्ल कर दिया जाता है और किसी के साथ ये रेप करके उसको ज़िंदा छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा ज़िंदा लाश बन जाता है, ना वो ज़िंदगी जी सकता है, ना वो आगे बढ़ सकता है, और दिल में इतना खौफ होता है। ये सिर्फ एक ऐसा वाक़या नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर ये मामूल बन चुका है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में बच्चे महफूज नहीं हैं। वालिदैन अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं कि अगर बच्चा हमारा गया है कि वापस आएगा भी या नहीं, या अगवा हो जाता है, या फिर ऐसी कोई ज़्यादती हो जाती है कि यहाँ पर बच्चे महफूज नहीं हैं। ना जाने समझ नहीं आती कि हमारी इस्लामाबाद की पुलिस के पास कोई ऐसी जादू, कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि कोई भी मुजरिम एक ऐसा पकड़ता है कि इस्लामाबाद से, और शायद किसी को कोई सबक होता है। जब हम इस्लामाबाद जैसे शहर में ये बच्चों को महफूज नहीं बना सकते, फिर सोचें पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा, जराइम की शरह में किस हद तक इजाफा हो गया होगा। हमारे सियासतदान भी अपनी अपनी कुर्सी बचाने की जंग में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं है कि जो बच्चे होते हैं वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होते हैं, बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ देना, बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना। लेकिन हमारी हुकूमतें शायद ये सोचती नहीं है, वो सिर्फ कुर्सी की आनी जानी देख रही हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आयशा को इंसाफ मिल सके। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ जाहिदा राव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।